मतलब क्या सर आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आ जाइए। तो यहाँ पे क्या पूछा है सर आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। चैप्टर तो पढ़ेंगे सर, लेकिन हम लोग मतलब क्या सर आपका चीज़ को कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में, ताकि एग्जाम अगर आ जाए तो मतलब क्या क्वेश्चन आप आंसर आपके पास ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका हो। अभी तो नहीं आएगा सर, लेकिन मतलब क्या ना सर आपका कि आपके पास अगर डेटा ऑलरेडी रहेगा तो वो डेटा को प्रोसेस क्या कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए इन इमरजेंसी एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो बहुत सारा चीज़ आप मतलब क्या बस पढ़ के भी जा सकते हैं, लेकिन पढ़ के तब जा सकते हैं आपके पास मतलब क्या क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो पहले मतलब क्या पूरा जमा कर लीजिए, उसके बाद लास्ट वाला पार्ट हम लोग क्या करेंगे सर आपके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान मतलब क्या करेंगे सर आपका देंगे, ठीक है ना। इससे पहले ऐसा इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि वहाँ पे टाइम था ही नहीं, समझ गए बात क्या आप लेना। अब आ जाइए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। एक्सप्लेन the process of using a digital clinical thermometer to measure body temperature. Explain the process of using a digital clinical thermometer to measure body temperature. The process of using a digital clinical thermometer to measure body temperature. Explain the process of using digital clinical thermometer to measure body temperature. चलिए ठीक है, हो चुका, आगे बढ़े। अब लिखिए, to measure body temperature using a digital clinical thermometer. To measure body temperature using a digital clinical thermometer. To measure body temperature using a digital clinical thermometer. First, wash the thermometer's tip with soap and water. First, wash the thermometer's tip with soap and water. Wash the thermometer's tip with soap and water. उसके बाद फिर क्या सर आपका, रीसेट द थर्मोमीटर, रीसेट द थर्मोमीटर बाय pressing the reset button. Reset the thermometer by pressing the reset button. उसके बाद फिर क्या सर आपका, place the thermometer under the tongue and close the mouth. Place the thermometer under the tongue and close the mouth. Place the thermometer under the tongue and close the mouth. यहाँ तक ठीक है, हो गया। And close the mouth. आंसर अभी बाकी है। Wait until the thermometer beeps or flashes a light. Wait until the thermometer beeps or flashes a light. Wait until the thermometer beeps or flashes a light. Indicating that the temperature is ready. Indicating that the temperature is ready. After taking the temperature, remove the thermometer. After taking
the temperature, remove the thermometer and read the display. रिमूव मतलब वहां से जमान के पास से हटा दीजिए. क्लीन, थ्रो अवे अगर बोलता तो आप फेंक देते हैं. थ्रो अवे अगर बोलता तो आप फेंक देते हैं. नहीं, रिमूव का मतलब हटा देना. जैसे रिमूव दिस ग्लास फ्रॉम हियर, है ना. क्लीन थर्मोमीटर टिप, क्लीन द थर्मोमीटर टिप again before storing it safely. Before storing it safely. Clean the thermometer tip again before storing it safely. Safely. चलो ये हो चुका. अब आगे बढ़ें. अब आप लिखो डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर. Describe the work. Sorry. Describe the working principle of a laboratory thermometer. Describe the working principle of a laboratory thermometer and how it is used. Describe the working principle of a laboratory thermometer and how it is used. Describe the working principle of a laboratory thermometer and how it is used. Describe the working principle of a laboratory thermometer and how it is used. हो चुका. अब आप लिखो a laboratory thermometer consists of a laboratory thermometer consists of a glass tube. A laboratory thermometer consists of a glass tube a laboratory thermometer consists of a glass tube with a bulb at one end filled with a liquid like mercury or alcohol. A laboratory thermometer consists of a glass tube with a bulb at one end filled with a liquid like mercury or alcohol. A liquid like mercury or alcohol. As the temperature changes, the liquid expands or contracts. As the temperature changes, the liquid expands or contracts. Moving along the scale. Moving along the scale. It contracts. As the temperature changes, the liquid expands or contracts. Moving along the scale. ये मतलब क्या असर आपका लैब थर्मोमीटर का मतलब क्या असर आपका डिस्क्रिप्शन हो गया. अब हाउ टू यूज इट. टू यूज इट टू यूज इट बड़ा हाँ. immerse use it. immerse Immerse the thermometer in the substance being measured. Immerse the thermometer in the substance being measured. the substance. Being measured. Ensuring the bulb doesn't touch the sides of the container. Shining. Ensuring the bulb doesn't touch the sides of the container. It's bulb. Ensuring the bulb doesn't touch
द साइड्स ऑफ द कंटेनर. Hold the thermometer vertically. Hold the thermometer vertically. वर्टिकली होना पड़ता है. Hmm. तो हॉरिजॉन्टली करता हूँ सब. ये लैब थर्मोमीटर है. मर्क्यूरी वाला ना. मरकरी वाला थर्मोमीटर मतलब क्या होता है, घर में भी इस्तेमाल होता है. मरकरी थर्मोमीटर मतलब कि लैब में इस्तेमाल होता है. लैब में इस्तेमाल होता है वो अलग होता है, बड़ा होता है, उसको होल्ड करना पड़ता है. मतलब क्या, वर्टिकली. इसमें तो सेम ही चीज होता है. दो देखिए, दोनों में फ़र्क है, तभी तो दोनों को अलग अलग पढ़ाया जा रहा है. नहीं, मरकरी इसमें- थर्मोमीटर का, नहीं 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 क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज कम है. नहीं मर्क्यूरी वाले क्लिनिकल थर्मोमीटर. मरकरी वाला क्लिनिकल थर्मोमीटर का भी रेंज कम है ना सर. आप 35 डिग्री सेल्सियस से लेके आप 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. उसमें क्या है सर, आपका मतलब 100 के पार तक जा सकते हैं, है ना. इसमें नहीं जा सकते हैं. अब बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर, वो फ़ारेनहाइट है. तो अब फ़ारेनहाइट में अगर आप बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना चाहते हो तो आपको पहुंचना पड़ेगा 212 तक. होल्ड करने का डिफरेंस इसलिए होता है ना सर आपका, कि जिस चीज़ को आप ऐसा हॉरिजॉन्टल कर देंगे ना अगर, तो कंटेनर का साइड को टच कर लेगा. तो और कंटेनर साइड को मतलब क्या टच कर लेगा, तो फिर क्या, कंटेनर का मतलब क्या सर आपका पिक कर लेगा टेम्परेचर. इसलिए बल्ब भी मतलब क्या सर आपका कंटेनर टच नहीं करना चाहिए मरकरी का. और hold the thermometer vertically and read the temperature where the liquid column meets the scale. Hold the thermometer vertically and read the temperature where the liquid column meets the scale. ये हो चुका. Meets the scale, yes. नहीं बढ़ा दिया. बढ़ा दिया. कहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं? हम जा रहे साइटी रोड. साइटी रोड. ओ हाँ. बारिश में तो बढ़ाएगा ही, उसमें कुछ कर नहीं सकते आप. डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल इन टेम्परेचर मेजरमेंट. अच्छा एक काम बस करना, अब बाकी जो मतलब क्या था, बचा हुआ क्वेश्चन है ना, वो बचा हुआ क्वेश्चन आप मतलब क्या करना ना, वीडियो देख के कर लेना, ठीक है ना. लेकिन कर लेना, ठीक है. बस हम रीड करके हल्का सा समझा के आपको निकल जा रहे हैं, ठीक है ना. क्योंकि देर हो, आने में भी देर हो गया था बारिश की वजह से. यहाँ पे अच्छा, ला रोज ब्यूटी सैलून का मतलब क्या कहता ले लेता है. पापा डाले होंगे ना, पापा डाले होंगे. पापा डाले क्या, गूगल मैप्स में तो है. और भी 10 लिए देखिए. डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल इन मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर मेजरमेंट. ये क्वेश्चन मतलब क्या पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो क्या था 2 मार्क्स वाले में था. अब ये मतलब क्या 3 मार्क्स वाले में. तो देखिए यहाँ पे क्या फ़र्क आया उससे. तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले सेल्सियस के बारे में लिखा है. द सेल्सियस स्केल इज़ वाइडली यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड फॉर मेजरिंग एवरीडे टेम्परेचर्स. अभी मत लिखिए, लिख लीजिएगा बाद में. अच्छा हम मैच कर सकते हैं. इंक्लूडिंग द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर. इतना इन्फॉर्मेशन लिखा किसके बारे में सर, आपका सेल्सियस स्केल के बारे में. द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ प्राइमरीली यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट फॉर वेदर एंड मेडिकल टेम्परेचर मेजरमेंट. हल्का सा बढ़ाया क्या, वेदर एंड मेडिकल टेम्परेचर ऑफ द मेजरमेंट. केल्विन स्केल का पढ़ाया, और केल्विन स्केल का जो पढ़ाया वो मतलब इंपॉर्टेंट है. द केल्विन स्केल विच स्टार्ट्स एट एब्सोल्यूट जीरो. ये नहीं लिखा हुआ था पहले. केल्विन स्केल एब्सोल्यूट जीरो नहीं लिखा हुआ था. लिखो तुमको याद है. केल्विन स्केल साइंटिफिकली स्टडीज स्टार्टिंग एट एब्सोल्यूट जीरो. अच्छा लिखा हुआ था. तो एब्सोल्यूट जीरो is crucial in scientific studies where precise temperature control is needed, particularly in physics and chemistry. ये चीज़ को ऐड किया है.
है ना। अब आगे आते हैं, बात को समझते हैं आगे क्या लिखा है। अब और देखो क्या change लिखा है, नहीं हुआ। हाउ डू एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर रीडिंग्स ऑफ अ थर्मामीटर। आइए चेक करते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज ह्यूमिडिटी, जानते हैं आप क्या होता है, वाटर वेपर का अमाउंट जो एयर में प्रेजेंट होता है। एयर प्रेशर, एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में टेम्परेचर लो होता है, लो एल्टीट्यूड में टेम्परेचर मतलब क्या होता है, हाई होता है। कैन इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी मे वैरी स्लाइटली बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ द डे, पहले ही पढ़ चुके हैं। वेदर कंडीशंस एंड ये तो लॉन्ग इंडिविजुअल्स आंसर में भी एक्टिविटी लिखा है था। लेवल। हाँ ये लॉन्ग आंसर मतलब शॉर्ट, मेरी शॉर्ट में भी लिखा है, तो सॉरी। हायर एल्टीट्यूड, अरे हमको बोलने की जरूरत नहीं था। मे ऑल्सो लीड टू मतलब क्या, सर आपका स्लाइट डिफरेंस इन बॉडी टेम्परेचर रीडिंग ड्यू टू Change in air pressure। चेंज इन एयर प्रेशर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। खत्म हो गया। अब खत्म हो चुका है ना।